गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैथ JEE लेक्चर नंबर 3। लास्ट 2 लेक्चर में we are discussed about some basic property of mathematics. Also we are discussed about quadratic equation and some more formula that you have to study in earlier standard. So now we are discuss about right now the most important formula that we have studied in earlier standard, but it is very useful, very important in JEE also, and all these formula that you have to study in next year standard 12. But recently we are studying about all these formula that you have to earlier standard. Okay. तो सबसे पहले आपने 8, 9, 10 में जो बेसिक फॉर्मूला का स्टडी किया है वही फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल है, मान लो कि ABC, वो ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is defined as half of base into altitude. So A की opposite side A, B की opposite side B, C की opposite side C. So first formula is half of base into altitude. That you have to know. What is base? मान लो कि यहाँ पे base BC है तो उसपे रहेगा altitude, call it AM. So AM is altitude. So altitude मतलब the length of the line segment AM. Altitude मतलब the length of the line segment AM. And base मतलब BC. मान लो कि आपका base AB है तो उसका altitude रहेगा यहाँ पे सपोज C है। मान लो कि आप base AC लेना चाहते हैं जिसका altitude रहेगा सपोज BL। तो आपके पास 3 साइड है, AB, BC and AC। तो तीनों साइड पे आप कोई भी जगह पे बेस कंसीडर करके इसका एल्टीट्यूड लेके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो। वन मोर रिजल्ट, अंडर रूट S minus A, S minus T, S minus C, where S is nothing but the semi-perimeter of the triangle. That where is the perimeter of the triangle A plus B plus C. What is A plus B plus C? So A plus B plus C is nothing but the sum of the all sides of the triangle. So here we denote 2S is equal to A plus B plus C. So where your area of the triangle is defined in terms of under root S with S minus A, S minus B and S minus C. अगर आप कोई भी फॉर्मूला से एरिया फाइंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। The answer remains same. Now we are discuss next formula, that is the area of equilateral triangle. So area of equilateral triangle ABC is defined as root 3 by 4 x square. Here root 3 by 4 x square. Equilateral triangle मतलब all sides are equal. मान लो कि इसकी लेंथ 5 cm, OB5. So area of equilateral triangle is defined as root 3 by 4 x square, where x is defined as the measure of the side, that is AB is equal to BC is equal to AC. Equilateral triangle में क्या रहेगा? All sides are equal. AB is equal to BC is equal to CA. That is called the equilateral triangle. तो उसकी फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, root 3 by 4 with x square. Now one more condition or one more formula. आपको सर्कल है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है। आप 10th में पढ़ चुके हो सर्कल। मान लो कि इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है। अगर इसको पूरा कंसीडर करते हैं बनेगा आपका डायमीटर D. So what is the area of the circle? Area of the circle is defined as A is equal to pi r square. A is equal to pi r square. So where r is defined as the radius of the circle.
पाई डी स्क्वायर। सो मैं आपको बताऊं पाई डी स्क्वायर मतलब पाई डी स्क्वायर बाय 4, where d is the diameter of the radius, diameter of radius. What is diameter? मान लो कि आपका ये सर्कल है, इसका सेंटर है। सपोज सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, लेंथ ऑफ द सेंटर from the any point of the circle is suppose 3 centimeter. So same way center of the circle from any point of the circle from the opposite side or any side, it is also same 3 centimeter. The total length is 6 centimeter. So your 6 centimeter is nothing but your diameter of the circle. So diameter of the circle is defined as 2r. What is 2r? So यहाँ पे d is 2r. So that means you can written in another form. So area of the circle is pi d square by 4. So pi d की वैल्यू आपके पास है 2r d whole square by 4. That means pi 2r का square, that is 4r square by 4. 4 cancel. That is remains pi r square. So this is the most important formula for area of the circle. Okay, second thing, my dear friends, आपको याद रखना है कि अगर सर्कल में रेडियस आपकी कांस्टेंट रहे, रेडियस कांस्टेंट रहेगी मतलब सेंटर से कोई भी पॉइंट तक आप डिस्टेंस फाइंड करोगे कि में कांस्टेंट. So radius is constant. Okay. Now, and one more thing, the radius is always strictly greater than 0. Strictly greater than 0. If radius is 0, then circle is not possible. That means you cannot draw the circle. That means it is a point dot. Okay. So next thing, area of a square. What is area of square? मान लो कि कोई भी square है, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल. सो स्क्वायर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइड इज 4, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर. सो हियर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में क्या रहेगा? तो रेक्टेंगल में लेंथ और breadth. So area of the rectangle is nothing but L into B. So opposite sides are parallel. So length into breadth. So area of rectangle is length into breadth. Okay. Now a बहुत simple formula. One more formula. Area of trapezium. What is trapezium? trapezium में आपके पास कोई भी दो ऑपोजिट साइड पैरेलल रहेगी. सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हाफ ऑफ h into a plus b, half of h into a plus b, where h denotes what h stands for height and a b are opposite sides which are parallel. So half of h into a plus b, ये टाइप का कोई भी ट्रेपेजियम रहेगा जिसका आपको एरिया फाइंड करना है. तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ ऑफ h इनटू ब्रैकेट a प्लस b. सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिर से आपको बताया कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. देखो मैथ्स में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है ज्योमेट्री में कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन JEE में जो ज्योमेट्री से आते हैं, ज्योमेट्री से आते पर्टिकुलर वही क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर लाना है. सो बहुत सारे क्वेश्चन में इसका आपको यूज करना है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हम जाते हैं वॉल्यूम पे. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर is defined as 4 by 3 pi r cube. Volume of the sphere is defined as 4 by 3 pi r cube. Okay. Now आपको मालूम होगा sphere आप कैसे
that is the sphere. So volume of the sphere is defined as 4 by 3 pi r cube. Now volume of cylinder, मैं आपको बताऊं what is the diagram of the cylinder. तो cylinder में आपके मेरे पास ऐसी सिचुएशन रहेगी, ये रहेगा आपका बॉटम पार्ट, ये रहेगा टॉप का पार्ट. So volume of the cylinder is pi r square h. pi r square h. मान लो कि ये जो पार्ट है वो आपका रेडियस रहेगा, that is 5. So volume of the cylinder is pi r square h. Now what is volume of cone? So all geometrical diagram or all geometrical figures that you are all are familiar with all these figures. So what is cone? cone को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. So cone में यहाँ से आपका ये रहेगा रेडियस, यहाँ से रहेगी हाइट और यहाँ से रहेगा स्लैंट हाइट. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. क्या रहेगी फॉर्मूला? 1/3 पाई r स्क्वायर h. नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर is 4 pi r square. What is the surface area of the sphere? 4 pi r square. So यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी सब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखी हुई है उसमें सब फॉर्मूला आप लास्ट 8, 9, 10 में कोई ना कोई जगह पे उसका स्टडी किया है. फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए फिर से मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन की है. ओके, दैट फॉर्मूला आर यूज्ड इन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 12th के जो जनवरी का टॉपिक है उसमें यूज करने वाले हैं. राइट टाइम पे ये अभी एक्सप्लेनेशन मेरा इसीलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि अभी से आपके माइंड में फॉर्मूला अगर बार बार रिपीटेड करोगे और डिवीजन के बेस में कंसीडर करोगे तो जब तक राइट टाइम पे इसका यूज करने की जरूरत पड़ेगी तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा कि मान लो कि उस टाइम पे अगर आप एक फॉर्मूला खोल के बैठो और देखने जाओ कि ये फॉर्मूला इसके लिए, फॉर्मूला इसके लिए, सो एट दैट टाइम some conclusion in your mind are not clear. ओके, सो आपके माइंड में जो रहेगा प्रॉब्लम वो क्लियर आप नहीं कर पाओगे. इसीलिए अभी से हम पहले से इनिशियल स्टेज से सब फॉर्मूला साथ साथ में प्रिपेयर करेंगे. ओके, तो यहाँ पे इन टोटल 10 फॉर्मूला है. इसके बाद हम एक 2 फॉर्मूला इसमें मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने जो आपको बताया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इसके साथ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is defined as 4L, where L is the length of the side. L denotes the length of the side. मान लो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर उसकी all sides are equal, so perimeter of the square is 4L. Same way, perimeter of rectangle. What is perimeter of rectangle? तो मान लो कि यहाँ पे a length, a breadth. What is perimeter of rectangle? अभी हमने देखा कि perimeter of area of rectangle is n into breadth. तो perimeter of rectangle is defined as 2 times length into breadth. That is 2 times L plus B.
सारे फॉर्मूला बाकी है वॉल्यूम और स्फीयर के लिए, लेकिन हम ऐसे करेंगे कि एक साथ पूरी फॉर्मूला सेम टॉपिक के साथ ले जाएंगे उसको। आज मान लो कि 8-10 फॉर्मूला की नेक्स्ट लेक्चर में इतनी सारे फॉर्मूला करेंगे, धीरे धीरे स्लो मोशन से हम ये फॉर्मूला को याद रखने का हम ट्राई करेंगे। और मैं पूरा जो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जनरल मैथमेटिक्स में आपको कई बार इसका यूज करना पड़े कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मैथ्स में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप मैथ्स में अभी तक इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, all you are familiar with these three signs, yes or no? Yes, this is called equality। इसको बोलेंगे लेस देन, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। ओके, सो इक्वालिटी, लेस देन एंड ग्रेटर देन। नाउ मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में आप अभी 11th स्टैंडर्ड में ये तीन फॉर्मूला, सॉरी तीन प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, लेस देन और ग्रेटर देन, इसका आप लीनियर इक्वालिटी में स्टडी करने वाले हो। लेकिन what are the difference between these two, less than और greater than? तो मान लो कि आपके पास कोई वेरिएबल x है, ओके, अगर x की वैल्यू a से कम है तो you should read this x is less than, that means x की वैल्यू a से कम है। if x is greater than a, that means you should read this x is greater than x की वैल्यू a से ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर ऐसा कर दूं तो आप इसको बोलोगे x लेस और इक्वल टू a, यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं तो आप इसको लिखोगे x ग्रेटर और इक्वल टू a। तो मैं डियर फ्रेंड्स इससे आगे एक स्टेप जाता हूँ। कई बार आपको ऐसा भी देखने मिलेगा कि मान लो कि ये रियल लाइन है, यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे सपोज +2 है, यहाँ पे रहेगा -2। तो +2 और -2 के बीच में सपोज कोई भी नंबर कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल x, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सो योर x इज लाइक बिटवीन, your x is lies between -2 and +2, that means your x is lies between two fixed numbers, so two fixed positive or negative real numbers, okay, +2 and -2, so we specially लिखेंगे -2 less than x less than +2, that means x की वैल्यू 2 से कम और -2 से ज्यादा। So that means we are splitting this inequality into two parts. One part is x is less than 2 and another part is x is greater than -2. Or some people should say read this as -2 less than x less than +2. Okay. तो यहाँ पे ये जो inequality है that is called inequality. Why is it called inequality? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पार्ट में इक्वल देखने को नहीं मिलेगा, so that's why it is called inequality. तो ये inequality ऐसे डिफाइन करते हैं। तो कई बार आपको ऐसा मिलेगा, मान लो कि रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, अगर कोई भी नंबर की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो आप कहाँ पे जाओगे? राइट साइड पे जाओगे, यस या नो? यस, तो आप राइट साइड पे जाओगे तो आप बोलोगे कि x कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल वी कंसीडर y, सो y की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा है, क्या है? 3 से ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे? y ग्रेटर देन 3। तो आपको जाना है 3 से ज्यादा, तो आप कहाँ पे जाओगे? राइट साइड पे। अगर आपको ना 3 से कम तो आप कहाँ पे आओगे? लेफ्ट साइड पे। तो आप लिखोगे y लेस देन 3। तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का ऐसे यूज करना है। I repeat it again, same thing. मान लो कि यहाँ पे 7 है, अच्छा कोई बोले कि मेरे को 7 x की वैल्यू 7 से कम चाहिए, तो आप कहाँ पे जाओगे? लेफ्ट साइड पे। अगर कोई बोले मेरे को x की वैल्यू 7 से ज्यादा चाहिए, तो आप कहाँ पे जाओगे? राइट साइड। So x stands for 7. So x is any number which are less than 7 or x is any number which are greater than 7. If x is less than 7, we will
go with left hand side. If x is greater than 7, so you go with right hand side. So that's why ये इक्वालिटी को ऐसे आपको कंटिन्यू करना है. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इक्वालिटी अभी ये बेसिक इक्वालिटी है जिसका आपको पर्टिकुलर बहुत सिंपल वे से मैंने कैसे प्रैक्टिकल करना बताया. लेकिन आज के नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड के नेक्स्ट टॉपिक में इक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू वाला फॉर्म भी रहेगा और which are connected with magnitude, which are connected with magnitude, that you have to know with absolute value. कोई भी नंबर की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो भी आप लिख सकते हो. That you have to study in earlier standard or you are familiar with absolute value. Yes or no? So मैं आपको बता दूं कि my dear friends, अभी आप लिखते थे, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक सिस्टम में कि आप x स्क्वायर है तो क्या लिखते थे? x लिखते थे. x स्क्वायर है तो क्या लिखते थे? x लिखते थे. Why? Because यहाँ पे कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर आप लिखना चाहते हो तो आप आंसर है लिख सकते थे जहाँ पे x कितना पॉजिटिव. ओके, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर में से एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वहां पे आपको लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. और यहाँ पे देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स. अगर आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है दिखने में, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा x, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. मैं इसका रीजन बताऊँ आपको क्यों. क्योंकि यहाँ पे x अगर आपका नेगेटिव होता तो उसका स्क्वायर के हिसाब से वो पॉजिटिव बन जाता है. दैट्स व्हाई इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है. सो x may be negative, x may be positive. That's why here we take up with the absolute value of x. But in this case, x must be positive. X never negative, because if x is negative, then square root of x is not possible. So that's why your answer is x. तो मान लो कि अभी आपके पास कोई भी अननोन वेरिएबल है, कोई भी अननोन वेरिएबल है, तो आपको इसको इतना याद रखना है कि अननोन वेरिएबल से एक बार स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, एक साथ स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो. देखो बोलने में क्या है, स्क्वायर रूट है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर है तो आंसर इज x. तो यहाँ पे आपको लिखना है x, यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. ओके, देखो मैं यहाँ पे सपोज 4 लिखूं, इसका स्क्वायर करो तो आंसर क्या रहेगा 4. क्यों? क्योंकि 4 इसका पावर कितना है 1/2, इसका पावर 2 का आंसर इज 4. अगर ऐसे भी नहीं मान रहे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर करो तो आंसर इज 4. तो आपका आंसर 4 है. लेकिन ये यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता. सोचो अगर मैंने ऐसे लिखा होता है कि -16 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन रुक जाता है, बिकॉज ये नेगेटिव रियल नंबर है और नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर x ओनली, एंड इन दिस केस वी हैव रिटन विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. नाउ एट लास्ट वी डिस्कस व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. एक्चुअल में आप फंक्शन में आप अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आई तो मैं आपको लास्ट में डिस्कस कर दूं कि मान लो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो आप पढ़ चुके हो, तो आप क्या बताओगे आंसर x? एक ही आंसर रहेगा, यस या नो? नो. ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स इसके दो आंसर रहेंगे, x और -x. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि ये दोनों में से कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर नेगेटिव है. तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है. मैं बोलता हूँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है. क्यों? ये तो पॉजिटिव दे आपको दिखाई दे रहा है, दैट मींस नो प्रॉब्लम. ये दिखने में नेगेटिव है ना, क्योंकि आगे माइनस साइन आप बोलोगे नेगेटिव है,
but it is not negative, it is positive, because your x itself is negative. X itself is negative. So x itself is negative. So a negative, negative, negative. That means your positive. That's why absolute value is always gives the positive value. Absolute value is always gives the positive value. देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताऊं. आप कभी मान लो कि -7 है, आप तब क्या लिखते थे? 7. क्यों 7 होता था? आपको तो ऐसा नहीं मालूम था. आप कहीं से कैसे लिखते कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7. व्हाई? द रीजन इज, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 एक्चुअल में -7 ही बाहर आता है, लेकिन -7 itself is negative. If x is negative, then your absolute value is always gives the positive value. So negative number को negative से multiply करना है. So minus plus, that's why you take the positive value. So you take the positive value. Suppose 8 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज 6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज 13 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. बट in case of your x is negative, तो कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू से वो नंबर आ रहा है, तो सेम सिचुएशन में आता है. अगर वो नंबर नेगेटिव है तो फिर से आपको इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है. दैट मींस द नंबर इज positive. That means your number is positive. So today, my dear friends, we have discussed about some basic formula. मैथमेटिक्स की जो फॉर्मूला है वो ज्योमेट्री की, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम. अभी बहुत सारे फॉर्मूला बाकी है, वो जैसे जैसे लेक्चर आगे कंटिन्यू होंगे वैसे वैसे हम इसका स्टडी करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में वी आर डिस्कस अबाउट सम मोर फॉर्मूला. ओके, थैंक यू.